Okay, Vijay, let us discuss our today's topic. First of all, good morning, all of you. You know, in the last class, we were discussing about the angular velocity. ठीक है? Angular velocity के बारे में हम discuss कर रहे थे. So yesterday we have discussed about the angular velocity. We have just studied about the angular velocity. Today we will discuss the relation of angular velocity with linear velocity. So angular velocity and its relation with linear velocity. Okay, what is its relation with linear velocity? I have already told you, whenever we will talk about linear motion, ठीक है, जब आप linear motion की बात करोगे और जब आप rotational motion की बात करोगे, as you know, our name of the chapter is rotational motion. ठीक है, rotational motion की ही हम study कर रहे हैं यहाँ पे. So whenever you will talk about linear motion and rotational motion, the velocity of an object in linear motion is said to be linear velocity, and we will represent it by v. And whenever the motion of an object is rotational motion, in that case the velocity of the object is said to be angular velocity. ठीक है, angular velocity, और इसको हमने डिनोट किया था कल किससे? ओमेगा से. ठीक है, ओमेगा से ही डिनोट किया था. तो लीनियर वेलोसिटी को आप डिनोट करोगे v से, एंगुलर वेलोसिटी को यू विल डिनोट बाय ओमेगा. अभी आप देखोगे कि आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है, whenever an object is moving in linear motion and it is changing its velocity, then वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस होती है, and linear acceleration is denoted by the letter a. In the same way, whenever the motion is rotational motion, ठीक है, and angular velocity changes, जब angular velocity change होती है, ठीक है, in that case वहां पे acceleration reduce होगी, and that acceleration is known as rotational acceleration, and उसको हम डिनोट करेंगे किससे? अल्फा से. ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है. तो we are discussing about the angular velocity, and yesterday we have discussed about the angular velocity. Angular velocity is denoted by omega, and it is given as angular displacement per unit time. Angular displacement per unit time taken. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद है ना, कल हमने किया था कि सपोज ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है अलोंग z एक्सिस, एंड अलोंग z एक्सिस सपोज एनी बॉडी, रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग z एक्सिस. तो देखिए, अगर z एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रही है, तो जिस प्लेन में वो रोटेट कर रही है, ऑब्वियसली ये प्लेन कौन सा होगा? xy प्लेन होगा, and this xy plane is perpendicular to the axis of rotation, means z axis. तो suppose सारे ही particles हैं, all the particles in this rigid body will move along with this body. ठीक है, उनके individual direction चाहे कुछ भी हो, लेकिन all the particles will move. ठीक है, in rotational motion. Suppose एक particle को हमने consider किया था, suppose this is a particle and its distance from the axis of rotation suppose r है. When this particle along this rotational motion, suppose after a time delta t, it has reached from position p to p dash. कल हमने किया था, ये p से p dash पहुंच गया है कुछ ऐसे. तो ये जो एंगल यहाँ पे बना है वो क्या है? d थीटा. तो हमने बताया था कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखिए, इतना एंगल यहाँ पे क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है. इसको डेल्टा थीटा भी आप लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखोगे? डेल्टा थीटा. कितने टाइम में दिस पार्टिकल हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन फ्रॉम p टू p डैश? तो ये टाइम कितना था? डेल्टा t टाइम था. तो डेल्टा t, और इन दोनों का रेशियो इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा related to the angular motion, and this is, sorry, not angular motion, rotational motion. It is given as angular displacement per unit time. ठीक है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था. तो जब आपके पास दिस डेल्टा t ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, इसकी अगर आप लिमिट लगा देते हो
और लिमिट ये लगा देते हो कि व्हेन दिस डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इतना स्मॉल कि ऑलमोस्ट किसको अप्रोच करे, जीरो को अप्रोच करे, उस केस में योर एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज, आप लिमिट लगाओगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और उस केस में ये आपके पास क्या बन जाएगा, आप इसको लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और ये आपके पास डी थीटा बाई डी टी है, इसको आप क्या कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बॉडी की, उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, एंड दैट इज गिवन बाय ओमेगा, दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये थीटा यहाँ पे क्या है, आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आप इसको सिंपली ये भी बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये क्लियर है। अब हमें देखना है इसका रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका रिलेशन लीनियर वेलोसिटी के साथ कैसे एस्टेब्लिश करेंगे वो हमें समझना है। तो देखिए अपना इसी डायग्राम से समझेंगे, जो हमारा आपकी बॉडी है वो z एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उसी को अपना बेस बनाएंगे और देखेंगे। देखिए ये मैंने आपको कल बता दिया था ना कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी, सपोज ये आपकी बॉडी कुछ रोटेशनल मोशन के अंदर है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, एंड ये आपके पास जेड एक्सिस है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आपका पार्टिकल था, उसकी पोजीशन इनिशियली p थी, आफ्टर डेल्टा टाइम t, सॉरी आफ्टर टाइम डेल्टा t इट हैज रीच्ड टू पोजीशन p डैश बाय ट्रांसवर्सिंग एन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा। यही हमने किया था। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन z, ठीक है, z इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे व्हेन द मोशन ऑफ योर बॉडी इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उस टाइम जब आपकी जो रिजिड बॉडी है उसका जो मोशन है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा बेटा। उस केस में योर एंगुलर वेलोसिटी, यू नो एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसी के अलोंग आपकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब वो डिपेंड करेगी कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हमें सिर्फ ये समझना है व्हेन द मोशन ऑफ योर रिजिड बॉडी एंगुलर रोटेशन में, the rotation of the body is anti-clockwise, in that case your angular velocity is outward, ठीक है। क्या होगी, आउटवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। बट व्हेन सपोज दिस इज the angular motion of, yeah, angular rotation of the body along again z axis, this is x axis and this is y axis, just like this। ये आपकी बॉडी है। नाउ देखिए इनिशियली इसकी पोजीशन क्या थी, दिस वाज द पोजीशन, ठीक है, p। कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन आफ्टर डेल्टा t टाइम इट इज ट्रांसवर्स एन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा, दिस इज डेल्टा थीटा, and it has reached in this direction, it has reached to p dash। देखिए opposite direction में, this direction is said to be clockwise direction। तो बॉडी का मोशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो पहले p से p डैश पोजीशन पे आई और कोई भी पार्टिकल लगा लीजिए, ठीक है, कोई एक पार्टिकल था जो यहाँ पे था p पोजीशन पे, आफ्टर डेल्टा t टाइम दिस रीच टू p डैश, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं एंगल डेल्टा थीटा वो भी कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो कौन सा होगा, यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, z तो बेटा यही रहेगा। लेकिन जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है इन दिस केस कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपकी ओमेगा होगी। ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बेटा, वेरी गुड, क्लियर है। चले आगे। अब हमें जो मेन स्टडी करना है वो स्टडी करना है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन। रेडी हो, चले मूव ऑन करें। ओके, ये समझ आ गया ना, इससे डरना नहीं है।
देखिए जस्ट अगर आपको ये समझ आ ही गया है तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे। ये देखिए हमें करना है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो उसके लिए सपोज कर लेते हैं एक पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर एक बॉडी बनती है। तो सपोज एक पार्टिकल है, ज्वाइन कौन नहीं कर पा रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मोशन कैसा है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ है, बिकॉज सर्कुलर पाथ होगा तभी उस मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है। आर रेडियस में वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर, देखिए एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वेलोसिटी नहीं लिखा मैंने, एंगुलर स्पीड लिखा ओमेगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। इट्स रेडियस इज, कहीं पे भी ले लीजिए, सपोज दिस इज द सेंटर ओ, ये आपके पास आर क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है। लेट इज सपोज एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, ठीक है, किसी भी टाइम टी के ऊपर सपोज द पार्टिकल है वो ए के ऊपर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इज एट पोजीशन ए, ठीक है। और ये आपके पास पोजीशन हो गई पार्टिकल की, एंड यू कैन सी द पार्टिकल इज एट a distance of r from the center of this circular path, जो कि क्या है, रेडियस भी है। तो सिंपली वी कैन राइट जो OA है, OA आप ये भी बोल सकते हो, इट इज द पार्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड सिंपली यू कैन से दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, रोटेशनल मोशन है, तो पार्टिकल तो रोटेट करेगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। पहले टाइम कितना था, टी था, किसी भी इंस्टेंट टाइम टी के ऊपर। अब मान लेते हैं आफ्टर ए टाइम डेल्टा टी, ठीक है, टी में अगर हम डेल्टा टी ऐड कर दें, मतलब डेल्टा टी टाइम के बाद दिस पार्टिकल हैज रीच्ड टू ए पोजीशन, दिस पोजीशन, ठीक है। सपोज ये पोजीशन हो गई पार्टिकल बी की, ठीक है, सॉरी पार्टिकल की पोजीशन इज बी आफ्टर हाउ मच टाइम, डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये आपके पास जो एंगल बन जाता है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करेंगे हम इसको, ये आपके पास क्या है, डेल्टा थीटा है बेटा। क्लियर है, किसी को समझ आया हो, नहीं समझ आया हो तो मुझे बताएं। अब देखिए वैसे तो ये आर्क है ए बी, आपको पता है ये एंगल है, दिस इज आर्क, ठीक है। अगर मैं इस ए बी को ज्वाइन कर दूं बाय ए लाइन, ऐसे कर सकती हूँ। ये आपके पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, कुछ ऐसे, ठीक है, और ये भी आपके पास वेक्टर है ऐसे। तो सिंपली लेट अस सपोज कर रही हूं मैं, लेट आपके पास जो OB है, OA तो आपके पास क्या था, R था, ठीक है। और क्योंकि डेल्टा टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड टू पोजीशन B, तो आपके पास जो OB होगा, कैन आई राइट इट इज R प्लस डेल्टा R, मैंने सपोज किया है, बिकॉज OA इज इक्वल टू R, ठीक है। एंड आफ्टर डेल्टा टी टाइम दिस ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड टू पोजीशन B, सो कैन आई राइट OB एज R प्लस डेल्टा R, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ से अगर आप देखें तो आपके पास अगर ये OB R प्लस डेल्टा R है और OA यू हैव R, तो इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट AB, ठीक है। AB को फाइंड आउट कर सकते हो, AB आपके पास कितना होगा, AB सिंपली रिटन एज OB माइनस OA। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, नो प्रॉब्लम, ओके। OB क्या है, OB इज R प्लस डेल्टा R बेटा, ठीक है। इसमें से सिंपली वी विल जस्ट डिडक्ट OA एंड OA इज R, तो देखिए R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड AB देखिए आपके पास क्या होगा, AB आपके पास आ जाएगा डेल्टा R। तो देखिए जब A से B तक पार्टिकल ने जब अपनी पोजीशन हैज चेंज्ड फ्रॉम A टू B इन डेल्टा t टाइम, तो इट हैज ट्रांसवर्स्ड अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा R, तो AB आपके पास क्या आ गया है, डेल्टा R आ गया है, ठीक है। तो हमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया है कि जो AB है वो आपके पास कितना आ गया, डेल्टा R आ गया, बस आधा हमारा काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, बैक टू अपना जो रिलेशन था,
उस पे जाना है। बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी कि एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर ओमेगा एंड इट इज गिवन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और सिंपली अगर हमें यहाँ पे डेल्टा थीटा को, इफ आई वांट टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। यहाँ से किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए जो डेल्टा थीटा है बेटा, ये वाला डेल्टा थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो? आपने फर्स्ट जो यूनिट है उसमें स्टडी किया होगा, एंगल इज इक्वल टू द आर्क ओवर रेडियस, लिख सकते हैं इसको। आपने फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया होगा कि ये आपके पास एंगल है, ठीक है। एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल इज इक्वल टू द आर्क ओवर रेडियस। अब यहाँ पे आपके पास आर्क कौन सी है? आर्क ए बी है, आर्क है बेटा, ये वाली ए बी आर्क, ठीक है। तो इस डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा आप देखिए सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है, तो डेल्टा थीटा इज द एंगल एंड दिस इज गिवन एज आर्क ओवर रेडियस। आर्क कौन सी है? ए बी आपके पास आर्क है, रेडियस आपके पास क्या है? ओ ए इज योर रेडियस, तो ओ ए लिख सकते हो मैं इसको। और ए बी को आप क्या लिख सकते हो? सिंपल स्ट्रेट लाइन ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक वेक्टर हमने देखा था अभी, डेल्टा आर के इक्वल आया था ये। और ओ ए बी आपके पास क्या है? सिंपली आर, तो इसको आप क्या लिख दोगे? डेल्टा आर ओवर आर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आ गया है? ओके, अब देखिए आपने डेल्टा थीटा को क्या लिखा था? डेल्टा थीटा को आपने लिखा था ओमेगा डेल्टा टी, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए इसकी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू द डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो देखिए अब ये जो डेल्टा आर है बेटा, इसको क्या कीजिए आप, इस डेल्टा आर को सिंपली, इस डेल्टा टी को डेल्टा आर के न्यूमरेटर में ले लीजिए और आर को इस ओमेगा के साथ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा ओमेगा आर इज इक्वल टू द डेल्टा टी को इसके रिस्पेक्ट में ले लीजिए, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसे किया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? पक्का ना? ओके, देखिए इसको घर जाके स्टडी करेंगे तो सब समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हो गया है हमारा। अब देखिए हमने क्या लिखा, हमने जस्ट लिखा जो डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू द ओमेगा आर, यही है। और अगर इस v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर v क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, उस केस में हम v को क्या लिख सकते हैं? v को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम। यस, कैन आई राइट v एज डेल्टा r बाय डेल्टा t? लिख सकती हूँ ना, जब आपके पास डेल्टा t ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है जीरो को, उस केस में v कैन बी रिटन एज डेल्टा r ओवर डेल्टा t, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, आपके पास जब लिमिट ऑलमोस्ट टेंड्स टू डेल्टा t ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हो इसको, v जो है आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा r ओवर डेल्टा t, मतलब instantaneous velocity of the particle at time t is given as v and this is equal to the delta r by delta t। डेल्टा t को अगर जीरो करोगे तो ये जो डेल्टा r बाय डेल्टा t है, इसको आप क्या लिख सकते हो? सिंपली यहाँ से देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो? v लिख सकते हो। तो ये देखिए आप इसको अगर v रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास ओमेगा r क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास v, ठीक है। यही हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना था कि एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी मतलब v, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। समझ आया? यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो ओमेगा आर आ गया था, लेकिन हमें राइट हैंड साइड में किसी तरह क्या चाहिए था? लीनियर वेलोसिटी, मतलब मुझे v चाहिए। तो v को लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको किससे रिप्लेस कर दिया है? आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे तो डेल्टा टी को किससे अप्रोच कर देंगे, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी की कि अगर डेल्टा टी जीरो हो जाए उस केस में डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चले। नो प्रॉब्लम, ओके, थोड़ा सा और करना है बस, हमारा हो गया। अब देखो, आपको पता है लीनियर वेलोसिटी v इज गिवन एज ओमेगा r, ऐसे ही है। तो देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो क्वांटिटीज रही होंगी वो कैसी होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो अगर इस रिलेशन को अगर मैं वेक्टर में शो करूँ तो कैसे शो कर सकती हूँ, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v इज गिवन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, एंगुलर वेलोसिटी एंड आपके पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो। तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। अभी मैंने वो डायग्राम रब कर दिया। अगर आपके पास r क्या लिख दूं मैं, जीरो। ठीक है, r जीरो कब हो सकता है, अभी देखो मैंने वो डायग्राम, अगर आपको याद हो जो हमने अभी सर्कुलर पाथ वाला डायग्राम बनाया था कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर पाथ है, रेडियस r वाला, जस्ट लाइक दिस। सपोज फिर से बना लेते हैं, ये आपका सर्कुलर पाथ है या सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है O, ये आपके पास पार्टिकल की पोजीशन लगा लेते हैं A, और ये क्या है R। ठीक है, अब ये पार्टिकल बेटा अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब जो इसका एक्सिस होगा वो आउटवर्ड होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड, अपवर्ड की तरफ। देखिए ऐसे ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है ऐसे, और वो पूरा इसमें से मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर ये मूव कर रहा है, तो देखिए अगर ये r जीरो हो जाए, ठीक है r अगर जीरो हो जाए उस केस में आपका r अगर जीरो होगा तो क्या होगा, जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ओमेगा इंटू आर, ये जीरो, और इसका मतलब ये भी क्या होगी, आपकी लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब r जीरो कब हो सकता है, जब आपका पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में ना लाई करके कहाँ पे लाई कर रहा हो, बॉडी के, वो पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लाई कर रहा हो, तभी तो ये r जीरो हो सकता है। r जीरो तो यहाँ पे हो सकता है, और अगर यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो उस केस में ये पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है बेटा। तो अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे आपका पार्टिकल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज आपके पास एक होलो रिंग है, ठीक है, होलो रिंग में अगर आप एक पेन डाल दो, ठीक है सीधा, तो जो पेन है ऊपर से नीचे की तरफ जो पेन आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो, तो वो जो पेन आपका क्या बन जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, उसी केस में r क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, दिस वेरीफाइज दैट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव नहीं करेगा। और कोई पार्टिकल अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है तो वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसीलिए उसकी वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिए आपने एक रिलेशन सुना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, स्टडी किया है कभी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल मोशन, इन दैट केस उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय अनदर रिलेशन 2 पाई न्यू। 2 पाई क्या है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है सेंटर के ऊपर, 2 पाई ही है ये 360, और ये न्यू है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक बॉडी ने कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई न्यू इज गिवन बाय ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओमेगा को 1 बाय न्यू को आप क्या लिख सकते हो, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एंड इसको आप क्या पुट कर सकते हो, 1 बाय टी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा सारे पार्टिकल्स के लिए वो क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर आप क्या निकाल सकते हो, जो ओमेगा है उसको कैसे निकाल सकते हो, 2 पाई बाय टी। क्लियर बेटा। तो अगर आपके पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल की बात कर रही हूँ, तो सारे पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी, लीनियर स्पीड होगी, वो सेम होगी,
और अगर आपके पास रोटेशनल मोशन होता है, प्योर रोटेशनल मोशन होता है, उस केस में सारे के सारे पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अगर मोशन कैसा, ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन, तो लीनियर वेलोसिटी सेम सारे के सारे पार्टिकल्स की किसी भी एक टाइम इंस्टेंट टी के ऊपर। और अगर मोशन कैसा, रोटेशनल मोशन, तो जितने भी इस बॉडी जो रोटेशनल मोशन में है उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और जो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करते हैं वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आपका, फिक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान में रखिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, यहाँ से एक चीज और देखिए, v इज इक्वल टू द ओमेगा इंटू आर, यही लिखा था ना हमने, ये लिखा है ना हमने। तो यहाँ से ये याद रखिए, जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जो पार्टिकल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, हालांकि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम रहेगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी किसमें, रोटेशनल मोशन में। लेकिन अगर हम रोटेशनल मोशन में इस लीनियर स्पीड की भी बात करें या लीनियर वेलोसिटी की भी बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की सेम रहेगी, लेकिन जो ये लीनियर वेलोसिटी देख रहे हो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पार्टिकल्स के डिस्टेंस के ऊपर लाई करेगी कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं वो तभी समझ आएंगी जब आप बुक को लाइन टू लाइन स्टडी करोगे। ठीक है, चलिए आगे। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ स्टडी की है, अभी हमें एंगुलर एक्सेलरेशन स्टडी करना है। बताया था ना, अगर लीनियर मोशन में अगर v है तो वहां पे क्या होगी, रोटेशनल में ओमेगा। अगर लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन a है तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, अल्फा। तो अभी हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे बाय ए लेटर। ये देखिए कई बार हम प्रोपोर्शनलिटी भी बोल देते हैं इसको, बट ये लेटर क्या है, अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन rotational motion, its acceleration is known as angular acceleration and it is represented by a letter alpha. तो angular acceleration को कैसे डिफाइन करोगे, नॉर्मली एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके वो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो टाइम के साथ। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the time rate of change of क्या, एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन की रेट हो रही थी, तो यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल है बेटा। तो देखिए इसको डिनोट किससे करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज। और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हम चेंज कैसे दिखा सकते हैं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो वहां पे हम क्या लिख सकते थे, एक्सेलरेशन को हम लिखते थे v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, यही लिखते थे बेटा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो ये, और इसको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को आप लिखोगे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। क्लियर है? और दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो एंगुलर एक्सेलरेशन को आप किससे डिनोट करोगे, अल्फा से डिनोट करोगे। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड है इस एंगुलर एक्सेलरेशन का उसको आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा। अब ये जो डेल्टा टी अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, तो आप कैसे लिखोगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इन दैट केस डेल्टा ओमेगा over delta t can be written as d omega by dt। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
अब देखिए ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा को आप लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी लिख सकती हूँ। अभी हमने देखा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ओमेगा की ये वैल्यू पुट कर देते हैं डी थीटा बाई डी टी, तो देखिए आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास बन जाएगी डी बाई डी टी तो है ही, तो डी बाई डी टी एंड ओमेगा को यू कैन रिप्लेस बाय डी थीटा बाई डी टी। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो प्रॉब्लम। चले आगे, तो देखिए इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर और ये बन जाएगा डी टी स्क्वायर। तो अल्फा आपके पास आ गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज क्लियर है? तो आपके पास ये आ गई क्या, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन के साथ। तो ये तो आपने अल्फा निकाल लिया, अल्फा आपके पास क्या है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज रिटन एज डी ओमेगा बाय डी टी। अब इसका अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन ए के साथ अगर रिलेशन निकाले तो वो कैसे निकाल सकते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नहीं कराऊंगी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं लिख देती हूँ अल्फा, एंड लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ए। ए और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें समझना है, ठीक है। अब देखिए आपने अभी देखा था जो लीनियर वेलोसिटी थी v, उसका रिलेशन देखा था किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। वो कितना था, यही था बेटा। इस रिलेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ v, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए चेंज क्या हो रहा है, आर तो चेंज नहीं हो रहा है, आर तो क्या है, फिक्स है। चेंज कौन होगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी ओमेगा। तो यहाँ पे आर को डिफरेंशिएशन से बाहर रख दीजिए और ये आपके पास होगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है, डी ओमेगा बाई डी टी, अभी आपने यही तो किया था कि अल्फा जो था उसको क्या लिखा था, डी ओमेगा बाई डी टी लिखा था। तो इसको आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, इसको आप रख सकते हो अल्फा। तो ये आपके पास हो जाएगा आर अल्फा, और डीवी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या लिखेंगे इसको, कोई बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कैन आई राइट एक्सेलरेशन होगा ये, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो यहां से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, ए आपके पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अल्फा क्रॉस आर। कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज गिवन एज क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये ऐसे होता तो हम इसको क्या बोलते, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन है किसके बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन। याद रखिए ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर रिलेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई डाउट तो नहीं किसी को, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है किसी टॉपिक में? देखिए मैंने पहले भी बताया था जहां हम बी की बात करते हैं लीनियर मोशन के अंदर, वहीं पे हम किसकी बात करेंगे, ओमेगा की। चाहो तो आप याद रख लो ये या लिख लीजिए कहीं पे, v स्टैंड्स फॉर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। कल हम स्टडी करेंगे फोर्स के बारे में। जब हम
किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के, सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, लीनियर मोशन हो सकता है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, एंड बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पे लीनियर मोशन में हम किसकी बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। तो कोई बता सकता है एंगुलर सॉरी रोटेशनल मोशन में फोर्स को कौन रिप्लेस करेगा? यस एनीबॉडी? देखो भाई, लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस किया रोटेशनल मोशन में किसने? एंगुलर वेलोसिटी ने। लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया किसने? एंगुलर एक्सेलरेशन ने। तो इसी तरीके से इफ इन लीनियर मोशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स, तो फोर्स की जगह जो फोर्स का इफेक्ट होगा, सेम इफेक्ट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय, यस मनीषा यू आर राइट, यहाँ पे हम बात करेंगे टॉर्क की, ठीक है, टॉर्क, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए लेटर टाउ, TOE, ठीक है, टाउ। टाउ is will if create the same effect as the effect produced by force in linear motion। तो जहाँ पे लीनियर मोशन में फोर्स की बात करते हैं, वहीं पे रोटेशनल मोशन के अंदर हम किसकी बात करेंगे? टॉर्क की बात करेंगे। तो बेटा कल हम टॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे। लीनियर मोशन में आप फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो? मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हो। कल हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है? रोटेशनल मोशन पे है, तो उसमें फोर्स लगा के, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा के हम वहां पे क्या क्रिएट कर सकते हैं? टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।